और साहस का परिचय। और कुछ ही क्षणों के पश्चात फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन होगा और आमतौर पर हम देखते हैं जमीन से, लेकिन इस बार आसमान से भी नज़ारा देखने को मिलेगा फ्लाई पास्ट के दौरान उन्नत वायुयानों का। और यहाँ सलामी मंच के समक्ष हिमवीर आगे बढ़ते हुए और उधर राष्ट्रपति भवन के पीछे से उन्नत वायुयान वायु विचरण की मुद्रा में आगे बढ़ रहे हैं। Grand finale of the 73rd Republic Day Parade with a fabulous display of balance and skill. The Jaguar positions, the symbol of spirit of the snow warrior, conveying the message that they are the sentinels of the Himalayas. Constable Dharmendra, Ashok Kumar and Vivek Khokar. All eyes now focusing on सबकी निगाहें आसमान की तरफ धीरे धीरे हो रही हैं, क्योंकि अब जो फ्लाई पास्ट होने वाला है और उस पर सबकी नजर होगी, क्योंकि कई तरीके से जो है ये खास होगा। जैसे कि अभी बताया भी गया कि इस बार आसमान से भी लोगों को देखने को मिलेगा कि जो विमान में होते हैं तो वहां से किस तरीके का नजारा होता है। And we now move from these beautiful moves to eyes in the sky from the direction of Rashtrapati Bhavan. The first formation going past the saluting base, Rahat, comprising 5 ALH aircraft in arrowhead formation, led by Wing Commander H.S. Chima, Wing Commander G.D.K. Reddy, Wing Commander S. Jamkas, and Wing Commander J. Rathore, Wing Commander Nenwa. और अब कुछ ही देर में सलामी मंच के ऊपर होगी मेघना फॉर्मेशन। ग्रुप कैप्टन मनीष गुहा जो चिनूक को उड़ा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य पायलट मी-17 को उड़ा रहे हैं विंग कमांडर एन मेहरोत्रा, विंग कमांडर गोपी कृष्णन, स्क्वाड्रन लीडर मोहित और स्क्वाड्रन लीडर पी.एन. रेड्डी। Special provision has been made to give you aerial shots too. So normally we take a look at the fly past from ground upwards, and here you're getting a view what the pilots actually see when they look down. अद्भुत दृश्य, सही मायनों में विहंगम दृश्य जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिले। और इसके बाद तिरंगा फॉर्मेशन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं विंग कमांडर गिरीश कुमार और अन्य पायलट विंग कमांडर वाई श्रीधर, स्क्वाड्रन लीडर वीर कुमार, स्क्वाड्रन लीडर चंदन पटनायक और विंग कमांडर गोपी कृष्णा। इस फॉर्मेशन में 5 सारंग ALH लैडर फॉर्मेशन में तिरंगा फहराते हुए दिखेंगे। Coming in the direction of saluting base, we have the Tiranga formation, led by Wing Commander Girish Kumar, Wing Commander Y. Sridhar, Squadron Leader Veer Kumar, Squadron Leader Chandan Patnaik, and Wing Commander Gopi Krishna, all participating in this formation. Here you can see what the pilots are seeing. A bird's eye view, an aerial view, an eye in the sky. The Tiranga going past the saluting base. आमतौर पर हम कहते हैं विहंगम दृश्य जो कि पक्षी की आंख से दिखाई देता है, यहाँ वायुयानों की आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य हम देख रहे हैं। और अब एकलव्य फॉर्मेशन नेतृत्व ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी कर रहे हैं। एक Mi-35 की अगुवाई और पीछे 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स 5 एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन क्षितिज अवस्थी, ग्रुप कैप्टन विजय राघवन, विंग कमांडर C.K. राव, विंग कमांडर G. पठानिया, अन्य पायलट। Traditionally, flypasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, and showcase flying skills and delight the public.
And now we look forward to Tangel. This formation comprising one Dakota aircraft in the lead with two Dornier aircraft in echelon flying in Vic formation will fly past at a height of 300 meters over the water channel north of Rajpath. The Dakota is being flown by Wing Commander S.S. Gehlot, the Dorniers by Wing Commander Shubham Mishra and Wing Commander Abhishek. Wing Commander Shubham Mishra and Wing Commander Neeraj Dwivedi, and their Tangel formation. We're all in for a very spectacular aerial display with cameras specially positioned, views never been seen before. Taking you up to the heights, they go, touching the sky with glory. Super Hercules aircraft in victory formation. C-130J is the special operations aircraft of the Indian Air Force and is capable of operating. The visuals giving you a feel of chill in the air, which we're all experiencing here down on the ground. First ever और अब त्राण फॉर्मेशन, इसमें आगे एक C-17 और पीछे 2C-130 400 मीटर की ऊंचाई पर राजपथ के उत्तर में वाटर चैनल के ऊपर से निकल रहे हैं। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन रवि नंद और दूसरे पायलट्स हैं विंग कमांडर राहुल रावत, विंग कमांडर हरिओम दुबे। and a host of advanced electronic warfare equipment, all indigenously designed and developed by DRDO. The clear blue skies today, perfect weather for a perfect fly past. And for these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky seems to be just an extension of them as they take wing and vanish into the blue. We now look forward to the next formation. This is the Netra formation. ग्रुप कैप्टन प्रांजल सिंह। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो फ्लाई पास्ट हो रहा है। प्रफुल्ल बख्शी, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, ये फ्लाई पास्ट इस बार का क्यों खास लग रहा है आपको? देखिए, 75 जहाज फॉर्मेशन में आ रहे हैं एक के बाद एक, और भारतीय वायुसेना की वायु शक्ति की हर एक उस दृश्य को दिखा रहे हैं जो डेली अंडरटेक करते हैं। अब जैसे कि नेत्रा फॉर्मेशन गुजरी है, अब एक आप देख रहे हैं त्राण फॉर्मेशन जारी है। एक C-17 ग्लोब मास्टर, C-130 हरकुलिस, इतनी क्लोज फॉर्मेशन पे फ्लाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह इस बार उपलब्धि है कि एरियल फोटोग्राफ्स, एयर टू एयर फोटोग्राफ्स आपके सामने मिल रही हैं। जो कॉकपिट से पायलट देखता है वो आपको नजर आ रहा है। ये सारा का सारा एडवांस टेक्नोलॉजी का नजारा है। सो MiG-29 हो चाहे सुखोई 30 हो, किस तरीके से डिसिमिलर एयरक्राफ्ट फॉर्मेशंस में जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्लो है, फाइटर एयरक्राफ्ट फास्ट है, उनकी मैन्यूवरेबिलिटी फर्क है, पर फिर भी वो फॉर्मेशन में रहते हैं। अब ये फॉर्मेशन जैसे आप देख रहे हैं, इसका बहुत महत्व होता है। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एरिया में, टैक्टिकल एरिया में, ताकि एक पे हमला हो तो दूसरा किस तरीके से उसका बचाव कर सके। ये इस समय तो बहुत शांतिपूर्ण वातावरण दिखाई दे रहा है, पर जब टैक्टिकल एरिया में होता है तब आपको पता चलता है कि आसमान में हंगामा क्या होता है। अभी तो बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से हमारे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, चाहे मिराज हो चाहे रफाल हो। यह है कॉकपिट में पायलट किस तरीके से देख रहे हैं, अपना नेविगेशन कर रहे हैं और स्टेडी फ्लाइंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल कॉकपिट में बैठा हुआ पायलट का नजारा आप देख रहे हैं। कई चीज़ें खास हैं बख्शी साहब। एक तो फॉर्मेशन, ऊपर से रफेल इस बार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो लोग इस फ्लाई पास्ट को देख रहे हैं इस खूबसूरत मौसम में, खूबसूरत तस्वीरों के जरिए, उनको आप बताइए कि जो ये विमान हम अलग अलग फॉर्मेशंस में देख रहे हैं, इनकी कितनी खासियतें हैं, और ये वो विमान हैं जिससे जो हमारे दुश्मन हैं वो घबराते हैं।
बिल्कुल। देखिए हमारे पास विमान कई प्रकार के हैं, क्योंकि भारत की जो स्थिति है, थ्रेट परसेप्शन है, उसमें बहुत तरीके के विमानों की जरूरत पड़ती है आपको। आपके पास में जैगुआर हैं तो जो कि डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करते हैं, तो आपके पास में रफाइल है जो कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सुखोई 30 है मल्टी रोल कॉम्बैट एयर डोमिनेंट आपको देते हैं। रेंज इनकी 400-500 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज होती है, तरह तरह के वेपन्स ले जा सकते हैं। अब ये ग्राउंड कोई नहीं अटैक करते, अगर वहां पे दुश्मन उन पे हमला करे तो उसके साथ भी लड़ाई करते हैं, जिसको कि आप ड्रॉग फाइट कहते हैं। ये जो और अब ये फॉर्मेशन फ्लाइंग का मतलब ये है कि जब एक साथ फॉर्मेट कर रहे हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जमीन से तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, बड़ा रोमांचक दिखाई देता है, पर इस समय जो कंट्रोल करना होता है जहाज को, तो एक फॉर्मेशन में एक दूसरे के साथ जाना होता है, टोटल जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन लगती है इस समय पायलट। और अब देख रहे सुखोई, देख रहे सुखोई 30 MKI देख रहे हैं इस समय किस तरीके से वो अपने को राइट टर्न कर रहा है। आप उसका बेली देख सकते हैं किस तरीके से उसके दोनों इंजन के 2 एग्जॉस्ट दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि पायलट को पता भी नहीं कहां से उसको कैमरा देख रहा है, पर इस समय वो सब नजर आ रहे हैं एक के बाद एक। ये तरह तरह के जहाज हर जगह से आए हैं और ये एरोहेड फॉर्मेशन पे अभी राष्ट्रपति भवन के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये मिग 29, सुखोई, मिराज, ये जहाज जितने भी हैं, अब जैसे कि ये वर्टिकल चार्जिंग कर रहे हैं, बिल्कुल त्रिशूल फॉर्मेशन में, बिल्कुल हवा वर्टिकल स्काई की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपको ये दर्शाता है कि आपका पायलट अपनी पूरी कामयाबी से अपनी मिशन करके आया है और वर्टिकल चार्जिंग या वर्टिकल रोल भी दिखाएगा। उसकी गरज आपको यहाँ जमीन पर सुनाई दे रही है। और जो लोग इसको देख रहे हैं वो भी ये चीज को समझते होंगे कि अलग अलग जो विमान आप देख रहे हैं इनके अलग अलग रोल होते हैं। मल्टी रोल कॉम्बैट विमान की बात बख्शी साहब आपने की। अब हमारे पास मिग 29 है, हमने यहाँ पर देखा रफेल हैं, सुखोई हैं, और इसके अलावा भी कई सारे विमान हैं जैसे कि जगुआर है। इनकी अलग अलग रोल्स को आप समझा पाए लोगों को। देखिए जगुआर की जिसको बात कर रहे हैं, अगर दुश्मन का टारगेट है 450 या 500 किलोमीटर अंदर और उसको डिस्ट्रॉय करना है और वहां से एयरफील्ड से जहाज टेक ऑफ कर रहे हैं, तो जैगुआर जाएगा। और अगर जैगुआर को प्रोटेक्ट करना है तो साथ में सुखोई जाएगा उसको बचाने के लिए, ताकि उसके ऊपर हमला ना हो। और अगर टैक्टिकल बैटल एरिया में दुश्मन हमारे फौज को तंग कर रहा है, तो क्लोज एयर सपोर्ट के जहाज जाएंगे जो कि जो दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एक फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर होता है जो उनको कंट्रोल करता है। अब ये देखिए नजारा किस तरीके से एक साथ अभी जहाज बढ़ रहे हैं। टोटल आप फॉर्मेशन तो नहीं गिन सकता, पर धीरे धीरे सब बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और इनकी जो तस्वीर जो खींचते हैं दूसरे एयरक्राफ्ट, एरियल फोटोग्राफी, वो बहुत जरूरी होती है। और हर एक फाइटर में ये प्रावधान है कि एरियल फोटोग्राफी भी कर सके। तो अभी ये आसमान में आपको एयरक्राफ्ट जो दिख रहे हैं ये बड़े स्लो नजर आ रहे हैं, पर इनकी स्पीड इस समय 800 से 900, 1000 तक भी हो सकती है। और जब फ्लाई पास करते हैं तो फाइटर एयरक्राफ्ट कम से कम 800-900 की स्पीड पे होता है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्लो होता है जी। और फाइटर एयरक्राफ्ट को थोड़ा ऊपर रखा जाता है ताकि वो उसकी विजिबिलिटी वो ठीक से देख सके आगे क्या है। और बैड विजिबिलिटी के कारण कुछ प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। अब देख रहे हैं बादल भी आ रहे हैं, विजिबिलिटी पुअर भी होती है, क्लियर भी होती है। तो ये जहाज जो इस तरीके से चल रहे हैं, ये आपको नजर आएंगे कि बड़ी स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइंग कर रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। टैक्टिकल बैटल एरिया में इस समय ये जहाज कलाबाजियां खा रहे होंगे, घूम रहे होंगे, एक दूसरे को अटैक करने की बात कर रहे होंगे, तो ये दूसरी चीज है। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का रोल जो है वो भारी सामान को, भारी ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और टाइम पे पहुंचाना। हेलीकॉप्टर टैक्टिकल एरिया में डायरेक्ट इंटैक्ट ट्रूप को करता है, डायरेक्ट वहां से एक्सट्रैक्ट करता है और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन भी कर सकता है। अटैक हेलीकॉप्टर भी है, वो अटैक भी कर सकता है।
तो कई रोल्स हैं और एयर इंटेलिजेंस रोल के लिए हमारे पास अवैध जहाज भी हैं और AEW जहाज भी हैं जो दुश्मन के रडार की, उसकी फ्रीक्वेंसी की तोल लेते हैं ताकि क्या किस तरीके से रडार और फ्रीक्वेंसी जहाज दुश्मन के काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए।